Hello, good morning, students. Now, today we will discuss about the design of crankshaft. Okay. So, first of all, before designing of crankshaft, we will have to know about the what is crankshaft. So, in engine component, crank is very important to part of an engine, IC engine, and crankshaft is a very important part where the transmission starts from the crankshaft. The reciprocating motion of the piston is converted to rotary motion by the crank, and the crankshaft, the power produced by the engine is transmitted by the crankshaft to the transmission devices, and it goes to the propeller shaft and the rear wheel. Okay, now crankshaft is very important, and today we will discuss about the crankshaft, and after discussing crankshaft we will discuss about the design of crankshaft. So a crank is used to convert reciprocating motion of the piston into rotatory motion of the piston, reciprocating motion into rotatory motion and vice versa. Okay, the crankshafts are generally made of carbon steel, special steel, or special cast iron. Okay, so these are the material: carbon steel, special steel, and special cast iron. And in industrial engineering, in industrial engineering, carbon steel such as 40C8, 55C8, 60C4 are the these are the material used in industrial engines. The in industrial engines in which crankshaft is used, in industrial engine, these are the material, carbon steel material is used. This is the grades of the steel. Now in transport engines like our four-wheeler, two-wheeler, bus, trucks, in transport engines, IC engine, magnesium is steel such as magnesium steel. Okay, steel in which there is a some amount of manganese are used, and the grades are 20 M22, 20 Mn2, 27 Mn2, and 37 Nm2. In aerospace engineering, in our aircraft and in our helicopters, or that engines light, we need a light engine, that why crankshaft is also light, in which nickel chromium steel is used, with a grade number of 35 N1 Cr60 and 40 Ni nickel, 2 chromium 1 molybdenum 28. These are the two important steel with nickel chromium is used in aerospace engines. Okay, now two types of stresses are induced in crankshaft. First one is bending stress, and second one is shear stress. Okay, so in crankshaft, um, suppose this is the engine, piston and cylinder. This is the crankshaft in which it will rotate like this. Okay, this will rotate, it will rotate continuously like this, and in this shaft, two types of stresses: bending stresses, because of the thrust of the engine, downward thrust of the engine, it will try to bend the shaft, and shear stress is induced because it is in rotatory motion, so continuous, because of its rotation, shear stress is induced, and in both the stresses, whether it is bending stress and shear stress, is induced in the crankshaft. That's why crankshaft is designed for these two type of stresses. So firstly we will have to look after the bending stresses. Based on the bending stress, we have to design the crankshaft, and based on the shear stress, we have to design the crankshaft. Okay, so in first case number 1, we will design crankshaft. Now some important notes are there. We have to remember the notes. The crankshaft must be designed or checked for at least 2 crank positions. Okay, 2 crank positions. Now second important note is, when the crankshaft is subjected to maximum bending,
and secondly when the crankshaft is subjected to maximum twisting moment or torque. That means I have already discussed, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये दो केसेस बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस के लिए हम लोग को डिजाइन करना है, और ये को नोट और हमेशा दिमाग में ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये दोनों केस के लिए ही हमको शेयर स्ट्रेस जो डिजाइन करना है क्रैंकशाफ्ट को, उसको डिजाइन उसी तरीके से करना है कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को मान के चलेंगे और फिर हम लोग ट्विस्टिंग मूवमेंट को मान के चलेंगे और उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि जब मेरा क्रैंकशाफ्ट जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पे सब्जेक्टेड है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट उस पर लग रहा है, तब एक बार डिज़ाइन करेंगे और फिर एक बार क्या करेंगे हम लोग कि क्रैंकशाफ्ट को हम लोग डिज़ाइन करेंगे विद द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क। ओके नाउ अब मेरा पहला केस है ये डिज़ाइन ऑफ क्रैंकशाफ्ट व्हेन द क्रैंक इज एट डेड सेंटर, दैट मीन्स केस नंबर 1, दैट मीन्स दिस वन। तो व्हेन द क्रैंक इज एट डेड सेंटर, तो जब मेरा क्रैंक डेड सेंटर पे होता है मीन्स मेरा बेंडिंग मूवमेंट में जो हम लोग रहेंगे डेड सेंटर में, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये क्रैंक जो है मूव नहीं कर रहा है, ये क्या है स्टेशनरी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ओके नाउ इट विल नॉट रोटेट, इट विल डेड सेंटर मीन्स हम लोग मान लेते हैं कि ये स्टेशनरी पोजीशन पे है और इस पर सिर्फ फोर्सेस लग रहे हैं, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। ओके तो इस केस पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे एट दिस पोजीशन बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट इज मैक्सिमम एट द एंड द ट्विस्टिंग मूवमेंट इज 0, बिकॉज इस पर कोई हम लोग ये इस पर कोई जो मूवमेंट हो नहीं रहा है, इस पर कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो जो ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा नहीं, ट्विस्ट हो ही नहीं रहा है। इस पर क्या लग रहा है, सिर्फ जो फोर्सेस लग रहे हैं पिस्टन के थ्रू जो इस पर फोर्स आ रहे हैं सिर्फ वो फोर्स लग रहे हैं, और उस फोर्स के हिसाब से हम लोग क्या करना है, इसको डिजाइन करना होगा। नाउ ये मेरा शाफ्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, और यहाँ पे ये क्रैंक जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ऐसे फिर पिस्टन की तरफ एक जाता है और जैसे पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है तो ये इसको घुमाता है, तो ये जब ऐसे रोटेट करेगा तब ये पूरा शाफ्ट क्या करता है, रोटेटरी मोशन कंटिन्यू करता है। फिर आगे जाके ये शाफ्ट थोड़ा सा हाफ टाइप का बना रहता है, फिर उसके बाद ये आगे वो ट्रांसमिशन लाइन पे चला जाता है। तो हमको डिजाइन करना है शाफ्ट के लिए। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको हम लोग बांट देते हैं 2 भाग में। ओके ये जनरली 3 पार्ट में लोग बांटते हैं। एक पार्ट मेरा यहाँ से शुरू, मतलब एक तो यहाँ से इंजन शुरू होता है यहाँ तक आता है, फिर दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होता है, मतलब ये जो वेव, इसको हम लोग वेव बोलते हैं, WEV वेव और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वेव। ठीक है, तो इसका डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वेव का। ठीक है, फिर ये इसके बाद इसका डिजाइन करना हम लोग को DS डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको मान लेते हैं हम टोटल कंप्लीट B, जो वेव वाला पोर्शन है उसको हम मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना है B, और ये यहाँ से यहाँ तक हाफ द थ्रू, ये B1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है B2। फिर उसी तरह इसको भी हम लोग मान लेते हैं इस पोर्शन को, ये टोटल कितना लेंथ है C, और यहाँ से यहाँ तक C1 और यहाँ से यहाँ तक C2, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, मिडिल पोर्शन से। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो रिएक्शंस लग रहे हैं, ठीक है, एक तो वर्टिकल रिएक्शंस, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H2 V2, 2 टाइप है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, हम लोग ये 3 पॉइंट एज्यूम किए हम, मान लिए। अब यहाँ पे 1 में जो लग रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है H1, तो क्योंकि पॉइंट 1 हमको जो फोर्सेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे इसका जो भी रिएक्शन आ रहा है उसको हमको देखना पड़ता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 में जो रिएक्शंस आएंगे वो एक वर्टिकल रिएक्शन V2 और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H2 आएगा, जब उसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो H2 डैश आएगा और इसका रिजल्टेंट आएगा R2। ये इसका रिजल्टेंट क्या आता है, R2। सेम उसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में जो रिएक्शंस आएंगे वो V3 आएगा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल H3 डैश, उसका रिएक्शन आएगा R3। ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस पॉइंट नाउ। और इसमें जो वेट लग रहा है, ये वेट लग रहा है W वेट लग रहा है इसमें। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये कि लेंथ D इज द पिस्टन डायमीटर इन mm, फिर P द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, स्मॉल p द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, W इज द वेट ऑफ द फ्लाईव्हील एक्टिंग डाउनवर्ड,
एंड T1 प्लस T2 इज द रिजल्टेंट बेल्ट टेंशन। ओके, बेल्ट का टेंशन ये हम लोग मान लेते हैं कि इसमें एक टेंशन आता है T1 प्लस T2 जो रिजल्टेंट बेल्ट टेंशन होता है। नाउ द थ्रस्ट इन द कनेक्टिंग लोड विल बी इक्वल टू द गैस लोड, गैस का जो लोड है सेम वही लोड जो क्या होगा वो थ्रस्ट बन के आता है नीचे की तरफ वो लगता है। ठीक है, अभी डिज़ाइन शुरू नहीं हुआ उससे पहले हम लोग उसको भूमिका बांध रहे हैं कि क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा डिज़ाइन करने में। उस सारा चीज़ को हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अभी पहले से हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को फार्मूला उस पर लगेगा डिज़ाइन करने में, उसके बाद हम लोग डिज़ाइन में आएंगे। तो ये थ्रस्ट जो लगेगा उसमें स्पेस्टर पे है, तो गैस लोड Fp is equals to pi by 4 d square into P intensity of pressure. Now Fp acting down horizontally, there will be two horizontal reaction H1 and H2 जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। H1 and H2 are the two horizontal reaction at bearing 1 and 2। तो ये तीन बेयरिंग मैंने पॉइंट बताया था, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जहाँ पे तीन बेयरिंग लगाएंगे, बेयरिंग नंबर 1, बेयरिंग नंबर 2 एंड बेयरिंग नंबर 3, जहाँ से मेरा रिएक्शन आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ओके, ना H1 horizontal reaction at point 1 is Fp into B1 by B, that means Fp the gas load or the thrust into B1 by B complete B, and H2 is equals to Fp into B2 by B। Okay, now due to the weight of the flywheel W acting downward, और क्योंकि फ्लाईव्हील का वेट कितना है W, तो वो क्या हो रहा है डाउनवर्ड, उसका लोड डाउनवर्ड की तरफ ही आएगा। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वर्टिकल रिएक्शन भी डेवलप करेगा। देयर विल बी टू वर्टिकल रिएक्शंस V2 एंड V3, दो पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 पे। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो वो बियरिंग पॉइंट 2 एंड 3 है। तो उसमें जो वर्टिकल रिएक्शन जो आएंगे वो क्या आएंगे V2, दैट मीन्स W इंटू C1 बाई C एंड V3 इज इक्वल टू W इंटू C2 बाई C। देखो इस पे क्या आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल। क्यों आ रहा है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस पे गैस प्रेशर लग रहा है, गैस प्रेशर लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे Fp इंटू B1 है, और यहाँ पे क्या है ये फ्लाईव्हील का वेट के कारण से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। और उस रिएक्शंस को W इंटू C1 बाई C सेम जैसे इसमें यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल, उससे वर्टिकल W इंटू C1 बाई C, W इंटू C2 बाई C। ओके, ना अब हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू रिजल्टेंट बेल्ट टेंशन, अब बेल्ट का जो रिजल्टेंट टेंशन है वो T1 प्लस T2 है। कंप्लीट रिजल्टेंट टेंशन क्या है T1 प्लस T2। देयर विल बी टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H1 H2 डैश एंड H3 डैश एट बियरिंग 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब H2 डैश एंड H3 डैश जो टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस डेवलप होंगे तो उस पर क्या आएगा रिएक्शंस H2 डैश का T1 प्लस T2 बाई C1 बाई C एंड सेम H3 डैश इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू C2 बाई C। द रिजल्टेंट फोर्स एट बियरिंग 2 विल बी गिवन। अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा बियरिंग 2 मतलब पॉइंट 2 जहाँ पे हम लोग बियरिंग 2 लगा के रखे हैं वहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा R2। रिजल्टेंट 2 विल बी H1 प्लस H2 डैश का होल स्क्वायर अंडर रूट H1 प्लस H2 डैश का होल स्क्वायर, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। दिस इज टोटल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ओके, मीन्स H2 एंड H2 डैश। ओके, दोनों ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को यहाँ पे लिए प्लस V2 का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से बियरिंग 3 पे मतलब पॉइंट 3 पे जो हम लोग लगाएंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा H3 स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया कि क्या ज़रूरत पड़ेगा डिज़ाइन करने में। हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो मेरा पहला जो डिज़ाइन होगा वो है क्रैंक पिन का। क्रैंक पिन क्या होता है, तो दिस इज क्रैंक पिन। ओके, सो और हम फिगर में देखेंगे तो दिस पिन, ओके, दिस पिन इज नोन एज क्रैंक पिन। जहाँ पे क्रैंक आके लगता है, जहाँ पे क्रैंक आके फंसता है, तो यहीं से क्रैंक क्या करता है, इसको घुमाना स्टार्ट करता है, इसी को पकड़ के ये पूरा शाफ्ट को घुमाता है। तो दिस इज क्रैंक पिन जो इसको क्रैंक को होल्ड करके रखता है, जो इसको पकड़ के रखता है। ओके, डिजाइन ऑफ क्रैंक पिन सिंस DC द डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन, हम लोग DC मान लेते हैं कि क्रैंक पिन का डायमीटर है, और LC क्या है लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन, एंड सिग्मा भी क्या है अलेबल बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि हम लोग अभी बेंडिंग पे ही चल रहे हैं। ध्यान रखना कि ये हम लोग बेंडिंग पे कर रहे हैं, अभी हम लोग ट्विस्टिंग पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बेंडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक आधार मान्य है कि अभी शाफ्ट में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस ही लग रहा है, क्योंकि ये डेड वेट शाफ्ट है। ओके, नाउ सिग्मा भी अलेबल बेंडिंग स्ट्रेस जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है ना। नाउ बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द पिन, हम लोग सेंटर ऑफ द पिन में देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या लग रहा है। तो सेंटर ऑफ द पिन में जब हम लोग देखेंगे तो MC
बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर क्या हो जाएगा, H1.B2, H1.B2। ये H1.B2 क्यों लगा, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म फिगर देखो, H1 ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस जो लग रहे हैं, और ये B2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग इसको मान रहे हैं, दिस इज द सेंटर, ओके, दिस इज द सेंटर, और ये सेंटर है क्रैंक पिन का, है ना, तो इसके हिसाब से लेंगे ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, H1.B2, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। और हम लोग को ये भी पता है कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या होता है, π/32, जो हम लोग 100 में पढ़े जनरली, π/32 dc³ इंटू सिग्मा भी, है ना। तो जो भी हम लोग का बेंडिंग स्ट्रेसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर का क्यूब से π/32 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा निकल जाता है बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट निकल जाता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन कैन बी डिटरमाइंड। अब यहाँ से हम लोग DC आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको MC पता है कि H1 क्या है, B2 क्या है, सिग्मा भी दिया हुआ है, तो DC निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो DC हमको आराम से यहाँ से मिल जाएगा, ओके ना। हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ, जैसे तो निकल गया डायमीटर, लेकिन लेंथ भी तो चाहिए। तो लेंथ क्या होगा, द लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन इज गिवन बाय LC, है ना। क्रैंक पिन का लेंथ क्या है, LC, और वो कैसे निकलेगा, FP डिवाइडेड बाय DC इंटू PV, वेयर PV का परमिसेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन न्यूटन पर mm², ओके। FP क्या है, पिस्टन, FP क्या है, गैस प्रेशर, FP गैस प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय DC इंटू PV, और ये PV क्या है, परमिसेबल बेयरिंग स्ट्रेसेस। तो बेयरिंग का जो भी परमिसेबल स्ट्रेसेस होगा उसको या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, या हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 35 to 40 न्यूटन पर mm, ओके। तो ये हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है। और यहाँ से DC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो DC को हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, मेरा लेंथ निकल जाएगा ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, B पॉइंट में हम लोग को क्या करना है, डिजाइन ऑफ लेफ्ट हैंड क्रैंक वेव। अब हम लोग क्या करना है, लेफ्ट हैंड क्रैंक वेव को हम लोग को डिज़ाइन करना है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि ये दो वेव है, WEB वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और दोनों सेम होता है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड होता है, वही सेम उसी जो भी डायमेंशंस होगा लेफ्ट हैंड का या जो भी स्ट्रेसेस होगा लेफ्ट हैंड में, सेम स्ट्रेसेस इंड्यूस होगा राइट हैंड में, और सेम डायमेंशंस होगा लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, दोनों इक्वल होता है। मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ किसी एक का डिजाइन करना है, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम चीज़ क्या होता है, दूसरा तरफ भी वही होता है। क्योंकि हम लोग को बैलेंसिंग करना, अगर जैसे क्या कि ये इंजन है और ये डायनेमिक इंजन है, तो डायनेमिक इंजन के लिए हम लोग क्या करना है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड वेव और राइट हैंड वेव को क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं, सेम टू सेम वैसे बनाते हैं। तो हम लोग सिर्फ किसी एक वेव का डिजाइन करेंगे, ओके। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि द थिकनेस ऑफ द क्रैंक वेव इज गिवन बाय, ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये कंप्लीट एम्पेरिकल फार्मूला है, ये कहीं से निकला नहीं है, ये हम लोग इससे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बनाते ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यही होना चाहिए इसका। तो इसमें हम लोग थिकनेस देखेंगे, तो थिकनेस क्या हो सकता है, 0.4 DS, मतलब जो डायमीटर और शाफ्ट का जो डायमीटर है उसका 0.4 mm इसका थिकनेस हम लोग ले सकते हैं, 0.4 से लेकर 0.6 तक, मतलब 0.4 भी लेते कोई दिक्कत नहीं है। DS मान लो जो भी आया, ठीक है, मतलब कितना आया DS, ठीक है, DS मान लो 10 सेंटीमीटर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का थिकनेस ले लेंगे, तो 6 का ले लें, ठीक है, या फिर 5 का ले लें, या 4 का, 4, 5, 6, मतलब किसी का भी ले सकते हैं। तो 0.4 से लेकर 0.6 DS तक का हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस ले सकते हैं। या फिर अगर डायमीटर हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो शाफ्ट का कंप्लीट शाफ्ट का डायमीटर पता है, तो 0.22 से लेकर 0.32 पर अगर हम लोग को DC पता है, मतलब डायमीटर भी क्रैंक पिन, लेकिन हम लोग अभी निकालें, तो अगर हम लोग उसको निकाल चुके हैं तो ये हमको ऑलरेडी पता ही है कि ये DC क्या है, ओके। तो जब अगर हमको ये DC ही पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0.65, मतलब जो भी DC आया डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0.65 से लेके, हाँ 0.65 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस क्या करेंगे 6.35 mm, ये mm है, ठीक है। तो ये mm हम लोग क्या करेंगे, उस पर ऐड कर देंगे, तो जो भी आएगा उसको हम लोग थिकनेस मान लेंगे,
वेयर ds इज द शाफ्ट डायमीटर, डी द बोट डायमीटर और क्रैंक पिन डायमीटर, जो कि हम लोग ये क्रैंक पिन डायमीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले ही, इससे पहले पॉइंट ए में, ठीक है। तो क्रैंक पिन डायमीटर ले सकते हैं। तो क्रैंक पिन डायमीटर लेने के लिए क्या होगा, 0.65 DC प्लस 6.35 mm, है ना। इसको हम लोग मान लेंगे कि यही मेरा फॉर्मूला है, ओके। और अगर किसी को डायमीटर पता है उसका बोर का, सिलेंडर का, पिस्टन का, तो उससे निकाल सकते हैं। अगर किसी को शाफ्ट का डायमीटर पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब तीनों ऑप्शन मेरे पास है ऑलरेडी ना। हम लोग क्या करेंगे, विड्थ देखेंगे कि इसका चौड़ाई कितना है, जो वेव है उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो वेव का चौड़ाई हम लोग क्या ले लेंगे, DCM को पता है, डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन, और ये पता है तो 1.125 प्लस 12.7 mm का इसमें ऐड कर देंगे। और तो जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, विड्थ ऑफ द वेव ले लेंगे, ओके। नाउ वी नो दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑन द क्रैंक वेव, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जानते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट जो है क्रैंक वेव का, वी नो दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑन द क्रैंक वेव जो क्या होगा, m इज इक्वल टू h1 v2 माइनस LC/2 प्लस माइनस T/2, ओके। नाउ सेक्शन ये तो मेरा हो गया कि जो हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्रैंक वेव में क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, h1 ब्रैकेट में v2 माइनस LC/2 माइनस T/2। ना सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, z इज इक्वल टू 1/6 इंटू डब्ल्यू, मतलब विड्थ इंटू थिकनेस का स्क्वायर। अब जब हमको ये पता चल गया तो हम लोग आगे क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग सिग्मा b इज इक्वल टू m/2, ओके ना, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6h1 v2 माइनस LC/2 माइनस T/2 डिवाइडेड बाई W इंटू टी स्क्वायर, एंड द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द क्रैंक वेव वो क्या रहता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा c इज इक्वल टू h1/W इंटू टी। अब क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल स्ट्रेस ऑन द क्रैंक वेव जो आएगा वो बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या मेरा, सिग्मा सी डायरेक्ट कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस जो भी निकाले हम लोग h1/W इंटू टी। तो बेंडिंग इंटू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा क्या जाएगा, टोटल यहाँ से निकल जाएगा क्या, स्ट्रेस। जो क्रैंक वेव में जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस क्या निकला है, 6h1 v2 माइनस LC/2 माइनस T/2 W इंटू टी स्क्वायर, मतलब विड्थ इंटू थिकनेस स्क्वायर, प्लस h1 डिवाइडेड बाई W इंटू टी। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा क्या जाएगा, टोटल स्ट्रेसेस ऑन द क्रैंक वेव, मतलब क्रैंक वेव में मेरा कितना स्ट्रेस लग रहा है ना। हम लोग सी पॉइंट में देखते हैं तो डिजाइन ऑफ राइट हैंड क्रैंक वेव। अब जब हम लोग राइट हैंड क्रैंक वेव सेम होता है तो इट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड क्रैंक वेव, तो इसके लिए हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना।